چیزوں کی کشش اور ترک دنیا۔ ہمارے ہاں ڈیفنس کالونی بہت خوبصورت کالونی ہے اور اس میں بڑے شاندار گھر ہیں جو دید کے قابل ہیں۔ ایک روز ہم وہاں بیٹھے تھے، ایک نہایت خوبصورت گھر میں ایک نہایت اعلیٰ درجے کے فانوس کے نیچے وہ سامان و اسباب سے بھرا ہوا گھر ہے۔ وہاں بیٹھے ہوئے پتہ نہیں کیوں مجھے اچانک خیال آیا کہ ہوائی جہازوں کی ایجاد کا 100 سال پورا ہو گیا ہے۔ ہوائی جہاز انسان کی زندگی میں داخل ہوئے تو اس کا جشن منایا گیا۔ اس حوالے سے ہم نے اخباروں میں بھی پڑھا، ٹی وی پر بھی دیکھا اور ان گزرے 100 برسوں پر ہم اپنے اپنے بیان دے رہے ہیں۔ میں برسوں سے ہوائی سفر کا مسافر ہوں، کم لوگ جانتے ہیں کیونکہ بہت خفیہ بات ہے اور آپ تک ہی رہنی چاہیے کہ 1947 میں پاکستان بنا، اس کے 3 ماہ بعد اگست، ستمبر، اکتوبر اور نومبر میں لاہور میں ایک بہت بڑا ریفیوجی پناہ گزین کیمپ تھا۔ میں وہاں پر ہیڈ کلرک کے طور پر ملازم ہو گیا۔ کہیں نوکری ملتی نہیں تھی۔ تقسیم کے بعد بھارت سے بڑی بے چینی کے عالم میں آئے تھے۔ میں اس وقت BA کر چکا تھا۔ امپلائمنٹ ایکسچینج کا دفتر وہ نوکری نہیں دیتا تھا۔ میں وہاں پر جا کر کہتا کہ جی میں BA پاس ہوں۔ وہ کہتے ہم اس کا کیا کریں؟ پھر میں نے ایک ٹرک کیا اور وہاں جا کر کہا کہ جی میں میٹرک پاس ہوں، فرسٹ ڈویژن میں۔ تو انہوں نے کہا کہ بسم اللہ، اور فوری مجھے نوکری مل گئی۔ ایک آدھ مہینہ کام کیا، پھر نہرو اور لیاقت علی خان پیکٹ کے مطابق یہ طے پایا کہ جو یہاں کے سکھ اور ہندو شرنارتھی پناہ گزین ہیں وہ بذریعہ ہوائی جہاز بھارت جائیں گے انہیں لانے کے لیے۔ ہندوستان سے ہوائی جہاز آتے تھے، ہمارے پاس تو تھا کوئی نہیں۔ وہ جہاز وہاں سے مسلمان پناہ گزینوں کو بھی لے کر آئیں گے، خالی نہیں آئیں گے۔ یہاں مسلمانوں کو اتار دیں گے اور پھر راولپنڈی سے، پشاور سے، لاہور اور ملتان سے اپنے مطلوبہ مسافر بھر کر لے جائیں گے۔ اس زمانے میں سول ایویشن کا ادارہ تھا اور ایوان صاحب اس کے انچارج تھے۔ والٹن ایئرپورٹ پر ان کا دفتر تھا اور وہ پرمٹ ایشو کرتے تھے کہ جو جہاز بھارت سے آیا ہے اس میں واقعی مسلمان پناہ گزین آئے، یہاں پر خالی ہو اور اب یہ آگے جا رہا ہے، پھر لاہور آئے گا اور پھر اسی طرح واپس جائے گا۔ یہ ایک مشکل کام تھا۔ انہوں نے سارے والٹن کیمپ پہ اپنے ادھر ادھر دیکھا، انہیں میں بڑا سمارٹ سا کلرک نظر آیا۔ کہنے لگے میاں تم نے میٹرک کی ہوئی ہے، بڑے پڑھے لکھے ہو۔ وہ مجھے سول ایویشن میں لے گئے اور میری سروسز ایویشن کے لیے مستعار لے لی۔ وہاں میری کرسی لگا دی چھاؤں میں اور کہا کہ تمہیں یہ کام کرنا ہے۔ میں بہت محنت سے وہ کام کرتا رہا اور پرمٹ ایشو کرنے لگا۔ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ خدا کلرک کو اتنی عزت دے تو اس کا دماغ کہاں پہنچ جاتا ہے۔ ونگ کمانڈر ایوان صاحب نے مجھے بتا دیا کہ یہاں جہاز کا نمبر بھرو، یہاں یہ کرو وہ کرو اور پھر پرمٹ ایشو کر دو۔ اب میرے پاس 20 25 30 پرمٹ ہیں۔ یہ پرمٹ کیا ہے؟ گویا کلاشن کوفے ہیں۔ اس وقت کینیڈین اور انگریز پائلٹ آتے تھے اور میں انہیں پرمٹ ایشو کرتا تھا۔ وہ 3 دن تو میں نے دیکھا، پھر میں نے کہا کہ یہ تو میرے متی ہیں، میں انہیں ایسے کیسے جانے دوں؟ ایک کینیڈین سے کہا کہ پناہ گزینوں کو یہاں ڈراپ کر دیا ہے اور جہاز خالی جا رہا ہے تو میں تمہارے ساتھ راولپنڈی چلوں گا۔ یہ میری پہلی فلائٹ تھی۔ اس نے کہا یس سر۔ اس کی جان تو میری مٹھی میں تھی۔ اس نے مجھے اعلیٰ درجے کی سیٹ دے دی اور کھانے پینے کی چیزیں بھی۔ اس طرح میں آتا رہا جاتا رہا اور ظلم جو ہوا، جس کی میں معافی مانگتا ہوں، کہ میرے وہاں جانے میں اور آنے میں واپسی پر 4 جہاز لینڈ ہو کر کھڑے تھے۔ انہیں چونکہ پرمٹ نہیں ملا تھا وہ کیسے فلائی کرتے؟ تو کلرک بادشاہ جو ہوتا ہے اور اس کی جو طاقت ہوتی ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں۔ میں نے عام طور پر جب بھی ہوائی سفر کیا اس میں اللہ کی مہربانی میرے ساتھ یہ رہی کہ پتہ نہیں کیوں میں منزل مقصود پر خیر و عافیت سے پہنچ جاتا تھا، لیکن اکثر و بیشتر میرا سامان نہیں پہنچتا تھا۔ یہ اکثر و بیشتر ہوا۔ اس میں خاص بات جس کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ 1950 میں روم سے میڈرڈ گیا۔ میڈرڈ پہنچا اور وہاں اترا تو انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں آپ کا سوٹ کیس کہاں رہ گیا۔ بہرحال ہم اسے ٹریس کرتے ہیں۔ میں نے کہا میں تو فلاں ہوٹل میں ہوں، مل جائے گا تو پہنچا دیجیے گا۔ اب میں ہوٹل میں 3 کپڑوں میں بیٹھا ہوں، ایسے ہی 3 کپڑوں میں جیسے خواتین کہتی ہیں کہ میرے خاوند نے مجھے 3 کپڑوں میں گھر سے نکال دیا ہے، اسی طرح میرے ہوائی جہاز نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ اس وقت میرے پاس ایک پتلون تھی ایکریلک کی، وہ نئی چلی تھی جیسے پیاز کا چھلکا ہوتا ہے، بہت پتلی، شاید آپ کو یاد ہو۔ وہ کھٹاکھٹ دھل جاتی تھی اور استری کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی تھی، اور ایک شرٹ اور ایک بنیان تھی۔ کل 3 کپڑے تھے۔ رات کو تو میں زیر جامہ ہی میں سو گیا۔ گرمیوں کے دن تھے، صبح اٹھ کر وہ کپڑے پہن لیے اور میڈرڈ کی سڑکوں پر گھومتا رہا۔ شام کو ہوٹل آ کر لیٹ گیا۔ دوسرے دن وہ کپڑے خراب ہونے کی فکر لاحق ہوئی۔ سنک میں ڈال کر پہلے پتلون کو دھویا، پھر شرٹ، پھر بنیان کو دھو کر وہاں لٹکا دیا اور سوتے وقت یہ دعا کی کہ اللہ یہ صبح اٹھنے تک سوکھ جائے۔ 3 دن اسی طرح گزرے۔ مجھے اصل میں کرتبہ جانا تھا۔ وہاں میڈرڈ سے لاری جو پرانی وضع کی تھی کرتبہ جاتی تھی۔ لاری کے اندر ہی انہوں نے بکرے دمبے وغیرہ رکھے ہوئے تھے۔ اس لاری میں سفر کیا۔ کرتبہ پہنچے تو میں نے کہا کہ یا اللہ جو میں پہنے ہوئے ہوں اب مجھے کرتبہ میں دنیا کی عظیم ترین مسجد میں جانا ہے۔ کچھ اور طرح کی کپ کپی بھی اتاری تھی اور میرے پاس صاف کپڑے بھی نہیں، وہاں نہا بھی نہیں سکتا تھا۔ مسجد موجود ہے اور میں وہاں پر نماز ادا نہیں کر سکتا، حکم ہی نہیں اس کا۔ یہ ساری تکالیف میرے ساتھ ساتھ چلتی
रही, लेकिन एक बात का मुझे एहसास हुआ जो अभी तक है, वो ये कि अगर इंसान के पास चीजें और सामान ना भी हो तो भी जिंदगी गुजर सकती है। और वो 7 दिन मैंने इस खुशी में और इस सुकून और आराम में गुजारे कि ना मुझे किसी चीज के चोरी होने का खौफ, ना मुझे इस बात की परवाह कि कुछ मेरे ऊपर क्या गुजरेगी। इतने आसूदगी के दिन किसी बहुत बड़े सूफी ने तो गुजारे होंगे, मेरी जिंदगी में बस वो 7-8 दिन ही थे। मैं लौट कर रोम आया तो होटल में मेरा सूटकेस पहले से आया हुआ था। मैं फिर इन्हीं लवाजमात में गर्क हो गया जिनमें हम सब गर्क हैं। हमें इन चीजों ने पकड़ा हुआ है। इसके बारे में मुमताज मुफ्ती साहब ने यूं लिखा है, हाजी लोग जो हज करने जाते हैं वो बेचारे चीजों के साथ इस तरह वाबस्ता होते हैं और इनकी जान अजाब में होती है, और हम पाकिस्तान के लोग अपनी चीजों के साथ खवातीन खास तौर पर इतनी मुंसलिक हो जाती हैं कि बस खुदा की पनाह। जबकि दूसरे मुल्कों के लोग, जिनकी मैं तारीफ तो नहीं किया करता, लेकिन ये मानना पड़ता है कि वो आम रोजमर्रा की चंद चीजें रखते हैं और बाकी ना इनकी कोई कोठियां हैं, ना मुरब्बे हैं, ना सामान, ना कुछ। मैं अमेरिका में एक रोड़ी कचरे से कीमती और बिल्कुल सही हालत में लैपटॉप लाया था। अमेरिका में हमारा यही काम था कि सुबह सवेरे रोड़ी पर चले जाते थे। एक इंतहाई आला दर्जे का सोफा वहाँ पड़ा था, लेकिन मैं क्या करता, देख देख कर दुखी होता था। सोफे पर बैठकर झूले लेकर आ जाता था, लेकिन लैपटॉप में उठा लाया, बिल्कुल चलता हुआ। नया मॉडल आने पर किसी ने फेंक दिया होगा। हम अभी तक चीजों के साथ बहुत बुरी तरह से वाबस्ता है और आगे पीछे हमारे चीजें ही चीजें हैं जो जान का अजाब बनी हुई है। मैंने जो चंद रोज बगैर चीजों के गुजारे हैं वो मेरे कमाल के दिन थे। जब मैं इस कोठी में बैठा हुआ था जिसका मैंने इब्तिदा में जिक्र किया था और जो बहुत खूबसूरत थी, और कमरे में एक आला दर्जे का फानूस लटक रहा था जिसके नीचे एक नौजवान लड़का अपने ओ लेवल की तैयारी कर रहा था और इसका ट्यूटर इसे पढ़ा रहा था, तो मालिक मकान दाखिल हुआ। इसने आकर कहा, देखा अशफाक साहब। इसने चीजों से भरे कमरे के बारे में कहा, क्या कमरा और इसकी सजावट पसंद आई? मैंने कहा, जी सुभान अल्लाह, ऐसी चीजें तो आदमी खुद ख्वाब में भी नहीं देखता। वो मास्टर से कहने लगा, आप भी अपना बोरिया बिस्तर उठाकर इस कमरे में आ गए हैं? उसने कहा, जी यहाँ रोशनी बहुत अच्छी है, पढ़ाने में आसानी रहती है। मेरे दोस्त ने कहा, वो तो ठीक है, लेकिन आप यहाँ बगैर मेरी इजाजत के आ गए हैं। ये इतना आला दर्जे का फानूस है और ऐसी खूबसूरत रोशनी जो तजल्ली की तरह है। ये इनके अल्फाज थे, हमारे अशफाक साहब भी इसकी गवाही दे रहे हैं। उसने कहा, मास्टर साहब, ये सारी रोशनी जो आपके लिए है ये सिर्फ एक सेमेस्टर के लिए है, फिर तो आपने यहाँ से चले जाना है। जितना एंजॉय करना है कर ले। वो उस्ताद था तो गरीब सा आदमी, मगर उसने कहा, साहब ये आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, ये एक ही सेमेस्टर के लिए है, फिर तो मैं यहाँ नहीं होऊंगा, मगर आपके लिए भी ये सब सामान ज्यादा से ज्यादा चंद सेमेस्टरों के लिए है। आपके 2 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, हम दोनों भी उसी तरह दरअसल एक ही कश्ती में सफर कर रहे हैं। इसकी बात मालिक को बुरी लगी, लेकिन बात ही इतनी मुदल्लल कि मालिक कहने लगा, कोई बात नहीं, आप आराम से बैठे, इतने नाराज ना हो। तो जनाब, ये चीजें इंसान को ऐसा पकड़ती हैं और इनमें ये बड़ा कमाल है कि आदमी ने जितना भी झटके, जिस तरह से गोखड़ों के खेत में पखड़ा कपड़ों के साथ चिमट जाता है, आदमी इसे फौरी नहीं जानता, लेकिन बाद में ये आपको तंग करता है। आदमी तबई तौर पर बहुत अच्छा होता है, बड़े प्यारे लोग होते हैं, आप इनसे मिलकर देखें, लेकिन इनके ऊपर चीजों और दिखावे का इतना बोझ पड़ जाता है जैसे खाली कनस्तर चिब्बा हो जाता है, वो चिब्बे हो जाते हैं। आप लोगों पर निगाह डालें, वो लोग जो तबन बहुत अच्छे होते हैं, मिजाजन भी अच्छे होते हैं, लेकिन दिखावे ने इनके ऊपर बड़ा बोझ डाल रखा है। और ये हैरत की बात है कि अच्छी और कीमती, दिलकश, खूबसूरत चीजों का ही मसला नहीं होता, एक और तरह की चीजें भी अपना कब्जा जमा लेती हैं। जब हम नूर वाले डेरे पर होते थे तो हमारे बाबा जी के पास एक नौजवान आया, बड़ा अच्छा पढ़ा लिखा। उसने कहा, जी मैंने दुनिया तर्क कर दी है और मैंने रहबानियत का रास्ता इख्तियार कर लिया है और मैं इन झमेलों में नहीं पड़ना चाहता। आखिर ये सब कुछ है क्या? मैं वहाँ बैठा था। नौजवानी के जमाने में इतनी तमीज नहीं होती कि बुजुर्ग या जिसको मुखातिब किया गया है वही जवाब दे, और वही जानते हैं क्योंकि इल्म वाले होते हैं। बस मैं भी बोल पड़ा। मैंने कहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम नौजवान हो, कुछ करना चाहिए, हिम्मत से, जद्दोजहद से, कोशिश से। ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है तुम्हारे इस्लाम में दुनिया तर्क करने की इजाजत ही नहीं और तुम तर्क दुनिया कर रहे हो, कितनी बुरी बात है। मेरी सारी गर्मजोशी देकर बाबा जी मुस्कुराए और इसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, बिस्मिल्लाह, जो कुछ आप करना चाहते हैं जरूर करें, आपकी राह में कोई हायल नहीं होगा। मैं हैरान हुआ कि इतने बड़े बुजुर्ग ऐसे बाबा जी और राय दे रहे, और क्या राय दे रहे हैं। वो नौजवान चला गया। मुझ में जुर्रत होती थी बात करने की। मैंने कहा, बाबा जी आपने ये क्या कहा? कहने लगे, कोई बात नहीं, इनको आसानियां जो अता करनी है, ये इनका मकूला था, इस तरह ही आसानियां अता होती हैं। आपने जो कहा वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन आसानियां अता करनी भी लाजिम है। जैसे वो नौजवान खुश हो वैसे ही ठीक है। 2-3 हफ्ते बाद वो नौजवान फिर आया और बड़ी खुशी के अंदाज में कहने लगा, लो बाबा जी, अल्लाह के फजल से सारा काम ठीक हो गया। तर्क दुनिया के लिए मेरा तहैया और मेरी डेट सारी फिक्स हो गई। मेरा एक सूट रह गया है। मैंने कहा, कौन सा सूट? कहने लगा, मैंने बोरी का सूट, पजामा और कुर्ता बोरी का बनाया है, वो बन जाए तो इसके बाद मैं जंगल को निकल जाऊंगा। और फिर कहने लगा, मेरा कशकोल भी आ गया है। ये काले रंग का जो कशकोल आपने देखा है ये जर्मनी में बनता है,
है जो आम फकीर लिए फिरते हैं। मैंने एक बार डिपार्टमेंटल स्टोर वाले से पूछा कि ये कहाँ से मिलता है। कहने लगे, जी हम जर्मनी से इम्पोर्ट करते हैं। मैंने कहा, फकीर बड़े सियाने हैं, बड़े बाज़ोक हैं जो जर्मनी से मंगवाते हैं। उस नौजवान ने कहा कि खूंडे लट को भी घुंघरू लग गए हैं। जब इसने ये चीजें गिनवाई तो मैंने कहा, बाबा जी आप बेहतर समझते हैं, मगर ये नौजवान तो उल्टा अजाब में पड़ गया है। ये तो चीजों के चक्कर से निकल ही नहीं सका, ये तो उल्टा चीजों को जमा कर रहा है, इन्हीं चीजों को जिन्हें छोड़कर जाना चाहता है। इसने तो दूसरी बला गले में डाल दी है। जब इसने चीजों की तैयारी की बाबत इजहार किया तो बाबा जी ने कहा, इतनी खेचल मुशक्कत जो करोगे, इतनी मुश्किल जो उठाओगे, ऐसे हमसे दूरी इख्तियार करोगे तो दफा करो तर्क दुनिया को और दफा करो रहबानियत को। जैसे बेहुदा हम हैं वैसे तुम हो जाओ, यही रहा करो, लंगर खाया करो और चैन की नींद सोया करो। तब इसकी समझ में आई बात। इंसान बाज़ औक़ात ये सोचता है कि जनाब अगर मैं यहाँ से जगह छोड़कर इस्लामाबाद चला जाऊँ तो सारी मुश्किलात का हल निकल आएगा, या बच्चे की शादी हो जाए तो मामलात हल हो जाएंगे। जब आप इस्लामाबाद जाएंगे तो आप अपना आप भी तो साथ लेकर जाएंगे ना, जो इन सारी चीजों में था। ये चाय बड़ी मुफीद होती है, इससे एक तो जहन के पर्दे खुलते हैं और कुछ रूह के पर्दे भी खुलते हैं और इनमें कुछ अजीब तरह की मुनासिबत पैदा हो जाती है। जब मैं इटली में था 54-55 बरस पहले तो एक वाकया पेश आया। मेरा कोई कसूर नहीं था, मेरे बॉस ने मुझे कुछ ऐसी बातें कह दी जो बर्दाश्त नहीं होती। दयारे गैर में किसी और हुकूमत की नौकरी करते हुए कुछ ऐसा तासुर पूछा जाए कि आपके कबील का कोई और शख्स आपके मुल्क में मौजूद है जिसे हम अगले साल ट्राई कर सके, यानी मुझसे ही पूछा जा रहा है कि तुम्हारी जगह किसी और को ला सके। मैं बहुत दुखी था, हालांकि मैं अपनी लियाकत का पूरा इजहार कर रहा था, लेकिन हमारे बॉस की अपनी महबूबा से कुछ लड़ाई हो गई थी और जो पहला बंदा इसकी राह में आया वो मैं था। हालांकि ना मैंने लड़ाई करवाई थी ना मेरा कोई कसूर था। तो वो एक तकलीफ दे शाम थी। जब मैं घर आया तो मैंने अपनी लाइन लिविंग से पूछा कि मुझे कोई अच्छी सी स्लीपिंग पिल लिख दें। मुझे तो पता नहीं। वो कहने लगी, तुम्हें ये क्यों चाहिए? मैंने कहा, मैं आराम से सोना चाहता हूँ, मैं तकलीफ में हूँ। उसने कहा, हम तो नींद की गोलियां नहीं इस्तेमाल करते, हम नहीं जानते, ये तो वलायती अंग्रेज लोग करते हैं। मैंने कहा, जब तुम पर कोई मुश्किल आ जाए तो फिर आप लोग क्या करते हो? कहने लगी, हम तो केमोमलाटी पी लेते हैं और आराम से सो जाते हैं। तुम भी पियो, तुम्हारे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। उसने अपना ओवरकोट पहना, ऊनी जूते पहनकर नीचे सीढ़ियां उतर गई और जाके केमोमलाटी का एक साशे खरीद लाई और मुझे इसमें गर्म पानी मिलाकर एक प्याली दे दी। मैंने इसे पिया तो नींद आने से पहले। अब ये तसव्वुर की बात आप कह लीजिए। मैं बैठा था अपनी कुर्सी पर तो मुझे बड़ा अच्छा सा लगा और मैंने कहा, मैं कल सुबह अपने बॉस को जाकर बताऊंगा कि हाँ, मेरे जैसे 3 आदमी और भी हैं वहाँ पर और आप इन्हें बुला सकते हो तो बुला लो। मैंने कहा, ये तो कमाल की चीज है। इस वक्त से लेकर मैं अब तक जब कभी अच्छी कैफियत की जरूरत महसूस करना चाहता हूँ तो केमोमलाटी पी लेता हूँ। मेरे दोस्त मुझे वहाँ से भेजते हैं। अब यहाँ भी यकीनन मिलती होगी, ना भी मिले तो मैं आपको ये बात तफसील से इसलिए बता रहा हूँ कि केमोमलाटी आप खुद भी पी सकते हैं। ये हमारे अतार के यहाँ से 1 रुपए का इतना पुड़ा भर देते हैं। इसे बाबोना कहते हैं। ये हमारे यहाँ उगने वाली जड़ी बूटियां हैं। गुले बाबोना आप इसकी शाखों के लेकर इसे चूरा करके मलमल की पोटली में बांधकर चाय में गोता दें। तो इस धुंध की रात को मैं अपनी प्यारी केमोमलाटी भी पी रहा था और बाबोना कहवा भी। फिर भी वो कैफियत पैदा नहीं हो रही थी जो आरजू थी कि पैदा हो। और जब कभी मुझ पर यह ख्वाहिश तारी होती है तो धुंध के जो दबीज पर्दे छट जाते हैं। कभी आपने धुंध को बहुत करीब से मुलाहिजा किया हो तो धुंध सारी की सारी ऐसे नहीं छाई रहती जैसे हमारे जहनों पर छाई रहती है। ये धुंध जो असली वाली है इसका रंग कुछ और तरह का होता है। ये रोल करती है और रोल करने के बाद इसकी दबाजत जब कम हो जाती है तो दरमियान में से एक लाइट पैदा होती है। पता नहीं वो लाइट कहाँ से आती है। आप धुंध को देखें, चाहे गाड़ी में बैठे हों, दबीज धुंध को देखें तो इसमें एक लम्हा एक वक्फा लाइट का जरूर आएगा, फिर धुंध गहरी हो जाएगी और आपको कुछ नजर नहीं आएगा। धुंध को देखना और इसके साथ वाबस्तगी पैदा करना इन मराहिल को तय करने में बड़ी आसानी अता करता है। अगर लोग बातिन के सफर को इख्तियार तो नहीं करते, मेरी तरह से बैठ के देखते जरूर हैं। मैं जब वहाँ बैठा था तो मुझे मेरे इस सवाल का जवाब तो नहीं मिला कि मैं रहने वालों में से भी हो सकता हूँ या नहीं, या मैं कोई बड़ा काम कर सकता हूँ या नहीं। अलबत्ता मुझे अपने अंदर से एक हुक्मनामा जरूर जारी होता हुआ महसूस हुआ कि कोई लंबा और बड़ा काम नहीं किया जा सकता, लेकिन तुम अपने अफाल को, अपने इरादों को लम्हात में, हिस्सों में बांट सकते हो। कदम एक उठाना है, फिर रखना है और फिर इसके बाद तुम्हें नया कदम मिलता चला जाएगा। लेकिन इस एक कदम में शर्त यह है कि तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि जो काम करने लगो इस काम के अंदर दिल भी है कि नहीं। काम एक वजूद वाली चीज है और वजूद का एक दिल भी होता है। अगर इसका दिल नहीं है, फिर इसकी तिल्ली है, जिगर है, दिमाग है, तो फिर इसको ना करो। अगर इसमें दिल की मंशा मौजूद है तो फिर इसमें दाखिल होने की कोशिश करो। बहुत से काम ऐसे होते हैं जो दिल के बगैर किए जाते हैं और चलते हैं। ना काम में दिल होता है, ना इस फेल में दिल होता है, ना आपके आगे आने वाली चीज में दिल होता
जाता है। अब तो साइंसदान कहते हैं कि दिल मक्खी से लेकर हाथी तक हर एक में होता है। वायरस तक में एक चीज ऐसी होती है जिसको आप दिल से मुशाबा कर सकते हैं। अगर इसमें दिल है तो फिर किसी काम में दाखिल हो जाओ। जब तुम खुलूस और नेक नीयत से दाखिल होगे किसी भी छोटे काम में, तो फिर आपको एक स्टेप और मिलेगा छोटे अंदाज में, और ये जुड़ते जाएंगे, और वो बड़ा काम जिसका तुम जिक्र करते हो ये उनसे भी बढ़कर हो जाएगा। मैं इस वक्त सोचने लगा, मेरे छोटे काम तो बस इतने ही हैं कि कभी कभी मैं दोनों जेबों में हाथ डालकर अपने अंदाज में किसी को बताए बगैर म्यूजियम में चला जाता हूँ और एक कोने से दूसरे कोने तक घूम फिर कर सामने बेंच पर बैठ जाता हूँ। वहाँ चाहे फास्टिंग बुद्धा हो चाहे ना हो, ये मेरा अमल है। फिर कभी कभी ये भी होता है कि मैं लाहौर के सबसे बड़े कब्रिस्तान मियानी साहब में चला जाता हूँ। थक जाता हूँ तो किसी कब्र के चबूतरे पर बैठ जाता हूँ। कभी कोई कुतबा पढ़ लिया, कभी ना पढ़ा। इस अमल से मुझे बड़ी तमानियत हासिल होती है। अब तो उम्र की वजह से मैं इस तरह से नहीं जा सकता। फिर मैं अपनी पोती माया, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया था कि पोते पोतियों के साथ थोड़ा वक्त गुजार लेता हूँ। बच्चों को अपने बड़ों के बारे में जानने का बड़ा शौक होता है कि वो कैसे थे, कैसे रहते थे। मैं इन्हें बताता हूँ कि तुम्हारे दादा को जानवरों का बड़ा शौक था और इन्हें एक अजीब तरह की खुशी होती है। इन्होंने कहा कि हमारे डैडी कहते हैं कि इन्होंने कुत्ते रखे हुए थे। मैंने कहा कि हाँ, बड़े खूनख्वार कुत्ते थे, ये इनका शौक था। और आम से सीधे साधे कुत्ते गली के, वो भी इनके पास आ जाते थे और वो कहते थे कि चलो तुम भी आ जाओ। मैंने कहा वो तुम्हारे दादा थे, यानी मेरे बड़े भाई थे। अब बच्चे इनके बारे में और जानना चाहते हैं। माया कहती है, दादा वो सुना है कुत्ते लड़ाते भी थे। मैंने कहा हाँ, कुत्ते लड़ाते भी थे। अब मेरे और आपके जहन में जागती है कि हम रहम दिल लोग हैं और अखबार में हम पढ़ते हैं कि बड़े जागीरदार जमींदार लोग कुत्ते लड़ाते हैं और वो बड़े खूनख्वार अंदाज में लड़ते हैं। तो बहुत कम लोग जानते हैं कि कुत्तों की लड़ाई ऐसी नहीं होती जैसे हमारे जहन में है। ये बात मैं माया को भी बताता हूँ। गाँव में 3-4 हजार का एक बड़ा खुला मैदान छोड़ा होता है, क्रिकेट के मैदान जितना। एक शख्स उधर से कुत्ता लेकर आता है जो उसने बड़ी मेहनत के साथ पाला होता है, बादाम, छुहारे, घी, मक्खन खिला पिला के। दूसरा अपनी तरफ से लेकर आता है, लेकिन वो आम से देसी कुत्ते होते हैं जो इन्होंने पाले होते हैं। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हैं और फिर वो इनकी संगली जंजीर खोल देते हैं और कुत्ते आपस में लड़ पड़ते हैं। मैंने जब तक ये लड़ाई नहीं देखी थी कि कुत्ते झपटते किस तरह से हैं और वो कैसे एक दूसरे की खाल उधेड़ देते हैं और बुरा हाल हो जाता है, मेरे जहन और तस्वुरात में ऐसी तस्वीरें बनती थी। लेकिन ख्वातीनो हजरात, जब वो कुत्ते आपस में लड़ते हैं तो ऐसे लड़ते हैं जैसे अखाड़े में पहलवान लड़ते हैं। वो एक दूसरे की गर्दन में दांत भी गाड़ते हैं जिससे थोड़ा खून भी निकलता है, लेकिन वो कुत्ते बस अखाड़े के पहलवानों की तरह ही लड़ते हैं। एक कुत्ता अपना दायां पंजा उठाकर दूसरे के गले में डालता है और इसे गिराने की कोशिश करता है। दूसरा पिछली दोनों टांगों पर खड़ा होकर इसको धकेल के पीछे कर देता है। वो दांतों से बहुत कम काम लेते हैं और इस तरह पंजों से भी कम काम लिया जाता है और वो एक दूसरे की जिस्मानी ताकत से टकराते हैं। जीतने और हारने की शर्त ये होती है कि जो कुत्ता गिर जाए और इसकी जमीन पर पीठ लग जाए, जिसे कंड लग जाना कहते हैं, वो हार जाता है और दूसरा जीत जाता है। और फिर डगाडग ढोल बजता है और दूसरा हारा हुआ कुत्ता शर्मिंदा सा दुम दबा के मालिक के साथ जा रहा होता है। मालिक भी शर्मिंदा सा होके जाता है। जब मैं बच्चों को ये बता रहा था कि तुम्हारे दादा कुत्तों के ऐसे शौकीन थे और इन्हें इसी किस्म के कुत्ते पसंद थे, तो माया कहती है, दादा ये बुरा फेल ऐसा है जो नहीं किया जाना चाहिए। मैंने कहा कि ये जानवर से मोहब्बत के अंदाज और मजहर है। अब देख लो कि ये मजहर सचमुच आपके अंदर मौजूद है या कि नहीं, क्योंकि जब तुम्हारे दादा एक और उम्र को पहुंचे जो बिल्कुल आखिरी उम्र होती है, तो बेशुमार चिड़ियां इनके हाथ पर बैठकर इनके हाथ से आटा छीन लेती थी। तकरीबन 30 चिड़ियां हाथ के ऊपर बैठकर आटा खाने के लिए लड़ाई कर रही होती थी। ये लंबी सारी कहानी सुनाने का मेरा मकसद ये था कि जब आप बात करते हैं तो एक ताल्लुक पैदा होता है और एक रिश्ता बनता है बच्चे के साथ या किसी बंदे के साथ, और आप इस बात में इतना डूब जाते हैं कि वो इस कहानी का दिल बन जाता है, सुनने वाले के लिए भी और सुनाने वाले के लिए भी। तो फिर आपको पता चलता है कि हाँ, अब आपको इसके बाद एक नया स्टेप मिलने वाला है और आप इस नए स्टेप में दाखिल हो सकते हैं, वरना मेरी आपकी रूटीन वही रहेगी जो चलती आई है और चलती आ रही है। इस धुंध के अंदर ये एक स्याह और दबीज पर्दों के अंदर से जब रोशनी पैदा होती है, ऐसे इंसान की जिंदगी में बहुत दबीज और बड़ी गहरी धुंध के बाद रोशनी का एक स्पॉट आता है जिसमें बड़ी आसानी के साथ जाकर वो अपनी जगह हासिल कर सकता है, क्रीज के अंदर आ सकता है। जिंदगी में काम करने के लिए अपनी क्रीज के अंदर रहकर खेलने की जरूरत है। आप हर वक्त छक्का नहीं मार सकते, हर वक्त चौका नहीं मार सकते, लेकिन आप अपनी क्रीज के अंदर रहकर, बहुत महदूद क्रीज के अंदर रहकर बहुत बड़ा मुजाहिरा कर सकते हैं। 22 दिसंबर को इस धुंध की वजह से ये बात खुलती गई और चलती गई। जाहिर है कि इसमें कैमोमिलाटी का भी जरूर असर था और इस सोच का भी जो मेरे साथ चिमटी रहती है। मैंने अब ये तय किया और मैं आपकी खिदमत में इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि आपने भी तय किया होगा, जिस दिन की मैं बात
बात कर रहा हूँ, नया साल शुरू होने वाला था जो अब शुरू हो गया है, तो इसके लिए कोई बड़ा प्लान बनाने की, कोई ऊंचा ताजमहल तैयार करने की, कोई अजीम पास्टेल बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम सब ऐसा सफर कर सकते हैं इसलिए कि हर कोई ये काम नहीं कर सकता। बहुत ही छोटे काम ऐसे हैं कि आदमी कितने दिलों को खुश कर सकता है। ना हींग लगे, ना फटकरी, ना आपको ज़कात मांगनी पड़े, ना किसी के पास जाना पड़ेगा, ना आपको कोई ऊंचा काम करना पड़ेगा। जिस्मानी जिंदगी को बरकरार रखने के लिए बड़े काम हो रहे हैं, तालीम दी जा रही है, अस्पताल खुल रहे हैं। अस्पताल हमें जिस्म अता कर सकते हैं, हमें झारा, भोलू और अनोखी बना सकते हैं, लेकिन आदमी तो कुछ और भी मांगता है। आदमी खाली जिस्म का तकाजा नहीं करता, भैंस खाली जिस्म है। बंदर, न्योला, चूहा, हाथी, जराफा, शेर, बब्बर शेर, ये एक जिस्म है। इंसान जो अशरफुल मखलूकात कहलाता है, ये खाली जिस्म नहीं है। धुंध के अंदर से जो रोशनी का एक सवाल निकला है वो है कि हमें बिल्कुल छोटा एक काम करना है, अपने इर्द गिर्द के बंदों को, निहायत छोटे बंदे को ये तसल्ली और तशफ़ी अता करनी है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मेरे साथ हो। और इस साथ के अंदर एक अंकड़ा चला है कि हमें आगे चलना है। हमारे पास कुछ नहीं है, हमने कुछ बड़ा काम नहीं करना है, हमने कुछ चंदे इकट्ठे करके पंफलेट छपा के ऐसा कुछ नहीं करना, लेकिन हमें चलते रहना है। आपने कभी दुकानदारों को देखा होगा, ऐसा भी होता है कि जो दुकानदार बहुत ज्यादा ब्लैक मार्केटिंग करता है, इसने आयतों के छोटे छोटे कार्ड छपवा के रखे होते हैं। ये मैंने इस रमजान शरीफ में देखा है। एक तरफ दरूद शरीफ छपा होता है, कुछ हल्लुल मुश्किलात की आयात हैं, वो आपको साथ जरूर देता है। हमने कार्ड नहीं छपवाने, हमारे दिल का कार्ड जब निकले तब ही निकले, जरूरी नहीं हर वक्त निकले। कई दफा हम ऐसी कैफियत में भी होते हैं, जैसे मैं था इटली में और इस खातून ने मुझे चाय पिलाई और मुझे आराम से बिस्तर में छुपा कर सुला दिया। बड़ी मेहरबानी। अल्लाह आपको आसानियां अता फरमाए और आसानियां तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। अल्लाह हाफिज।